Now, Sunita Kejriwal, wife of Arvind Kejriwal, has spoken out within the Rouse Avenue court premises. She said he is being harassed. This dictatorship can't continue. His health is not good. Sunita Kejriwal spoke with the media as she was leaving the courtroom premises. Here's what she said. मैम, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। Amit Bharadwaj, my colleague, is joining us live. He was there inside the court premises. Amit, Sunita Kejriwal there claims that the chief minister is being harassed and the people of Delhi will give a befitting reply. True, Paulami. I had asked Sunita Kejriwal specifically about Arvind Kejriwal's health, and she said that his health is not good, and she's especially concerned about the sugar levels of Arvind Kejriwal. Along with this, she said that Arvind Kejriwal is being troubled, is being harassed, and the dictatorship will not continue for long. People will respond. People will give befitting response to this. That's what Sunita Kejriwal said, you know. And before that, Arvind Kejriwal, when he was being produced in the Rouse Avenue court, he had spoken to us saying that, you know, all this is a part of a political conspiracy, and that people will respond to it. Paulami, what is more important is the kind of the way Arvind Kejriwal has disposed in front of the court today. That's quite interesting. We were given an indication that he could be speaking on Sharat Chandra Reddy's aspect in the court today in order to make sure that this comes in the records of the court as well, as far as the excise policy case is concerned. But he went way beyond that as well, you know, saying that he has been arrested on basis of 4 statements. These were accused who were constantly questioned by the ED. Several statements were recorded, and only when they took Arvind Kejriwal's name in one or the other Amit, manner. just stay on with us at the moment. Just listen in one more time to what Sunita Kejriwal said. Amit, we'll be back with you. We'll come back to you. मैम, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। Minister Saurabh Bharadwaj, who's now addressing the media. स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है, और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा, मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। यानी कि सी अरविंद को मनीष सिसोदिया जी ने सीएम साहब के घर पे कुछ एक्साइज के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने यह नहीं कहा कि कुछ पैसे दिए, ऐसा कोई आरोप नहीं है। मैडम, मेरे घर पे ढेरों विधायक, मंत्री और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, वह आपस में खुसर पुसर करते रहते हैं और कई कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना यह सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए, जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको MSR भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। MSR एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं, मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था, तो उन्होंने मेरे से कहा
कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, एलजी साहब के अंडर आती है, आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए ज़मीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है, ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक पीएमएलए का सेक्शन है।